Assalamu alaikum, class. I missed you folks during last one semester. Here we are with yet another exciting course, Urban Design, a subject really close to my heart. Today, we begin a journey, not just a course. Urban Design isn't just another subject in your undergrad degree, it's a new pair of glasses. जब आप इस नजरिए से शहर को देखेंगे, suddenly you'll notice the invisible things, the width of a footpath, the shadow of a tree, the corner chai shop that anchors an entire neighborhood. Imagine Rawalpindi at dawn. आप सुबह यूनिवर्सिटी जा रहे हैं. रिक्शॉज के हॉर्न्स, दूध वाले की साइकिल, ब्रेड वाले की दुकान की रोशनी और इंटीरियर सिटी रोड्स के पुराने दरख्तों के नीचे गुजरती हवा. This rhythm is the real city. Even before we notice buildings, the urban experience begins. Urban design is about shaping that life. It's the invisible framework जो डिसाइड करता है कि आपको सड़क पर चल के कैसा फील होता है, एक चौक पर रुकने का मूड कू होता है, या एक बाजार में कितना सेफ महसूस होता है. यह कोर्स डायग्राम्स और प्लान्स के बारे में नहीं है, सिर्फ ये लोगों के बारे में है. यू लर्न टू डिजाइन बिलोंगिंग, मेमोरी एंड आइडेंटिटी. इस सेमेस्टर के एंड तक यू वोंट जस्ट वॉक थ्रू सिटीज, यूल रीड देम. यूल सी एवरी गली, चौक और फ्लाईओवर एज अ डिजाइन डिसीजन. सो बकल अप, क्योंकि हम शहर को नई लैंग्वेज में समझने वाले हैं. सिटीज आर नॉट स्टैटिक स्ट्रक्चर्स, दे आर लिविंग, ब्रीदिंग स्टोरीज. हर शहर एक कहानी लिखता है और हर डिजाइन डिसीजन उस कहानी का एक लफ्ज है. लेट्स टेक मोहेंजो-डरो. ओवर 4500 ईयर्स अगो ये दुनिया का सबसे पुराना प्लान सिटी था. स्ट्रेट रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, यूनिफॉर्म ब्रिक साइजेस, सब कुछ सोच समझ के डिजाइन किया गया. Even at that time, humans understood that how we arrange our streets and homes affects how we live together. Fast forward to Times Square, New York, neon lights, endless billboards, street performers, traffic. Two completely different worlds, centuries apart, yet both are urban design masterclasses. मोहेंजो-डरो की गलियां सेफ्टी और सैनिटेशन के लिए बनाई गई थी. टाइम्स स्क्वायर इज अबाउट कॉमर्स, कल्चर एंड स्पेक्टिकल. लाहौर की लिबर्टी मार्केट की गोल चौक, कराची का क्लिफ्टन बीच, इस्लामाबाद के परफेक्टली ग्रिडेड सेक्टर्स, सब एक कहानी सुना रहे हैं. Sometimes that story is of heritage and pride, sometimes it's of chaos and inequality. Urban design is that thread जो इन कहानियों को कनेक्ट करता है. As future architects, you're not just drawing plans, you're writing stories of life. A building can be beautiful, लेकिन अगर यूएस के सामने की सड़क अनसेफ है, या if there's no space for people to connect, the design fails. This course is about seeing beyond individual buildings and understanding the city as a whole organism. So, formally, what is urban design? Gallian और Eisner define करते हैं, the process of giving form, shape, and character to groups of buildings, to whole neighborhoods, and the city. Notice the emphasis, groups of buildings. Urban design isn't about one iconic tower, it's about the space between buildings. Kevin Lynch, author of The Image of the City, introduces a beautiful concept, imageability. हर शहर की एक मेंटल मैप होता है. For example, think लाहौर, इंस्टेंटली बादशाही मॉस्क का डोम याद आता है. कराची के लिए क्लिफ्टन का बीच, शहराहे फैसल की पाम ट्रीज. इस्लामाबाद के लिए मरगाला हिल्स और सेक्टर्स का नीट ग्रिड. These aren't random, they're designed experiences. Urban design is the bridge between urban planning and architecture. प्लानिंग कहता है, यहाँ रोड होगी, यहाँ हॉस्पिटल. आर्किटेक्चर एक इमारत डिजाइन करता है. अर्बन डिजाइन वो दोनों को कनेक्ट करता है. कैसे इस रोड के ऊपर चलना फील होगा, वो हॉस्पिटल का एंट्रेंस कितना वेलकमिंग होगा. सिटीज आर्ट जस्ट फिजिकल, दे आर इमोशनल. आपको कभी फील हुआ कि एक गली आपको सेफ लगती है, दूसरी नहीं? यह अर्बन डिजाइन है. कभी एक चौक पे खुद बाखुद रुक के चाय पी लेते हैं, क्योंकि वो स्पेस कोजी लगता है? यह डिजाइन है. We'll learn to decode this invisible language. Urban design आज के ज़माने में सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं, it's a social and environmental responsibility. Take Barcelona as example. एक वक्त था कि गाड़ियों ने शहर को डोमिनेट कर लिया था. Noise, pollution, accidents. Then came super blocks, entire grids closed off to through traffic. Suddenly, children were playing cricket-like games on streets, cafes put chairs outside, noise dropped, और रेजिडेंट्स ने शहर को दोबारा अपना बना लिया. सिंगापुर में स्काईस्क्रेपर्स के बीच वर्टिकल फॉरेस्ट्स और रेनवाटर हार्वेस्टिंग इंटीग्रेटेड हैं.
Copenhagen has cycling highways. Meanwhile, Islamabad's original master plan built green belts and reserved spaces for pedestrians decades ago. पाकिस्तान के शहरों ने भी अर्ली प्लानिंग के एग्जाम्पल्स दिए हैं, but we lost that vision. Today's urban design means inclusivity, sustainability और resilience. It's about gender-sensitive spaces, औरत मार्च को याद करें, accessibility, wheelchair users के लिए ramps, और environment, कराची के मैंग्रोव्स, लाहौर के ट्रीज। आपका काम सिर्फ प्रिटी लुकिंग बिल्डिंग डिजाइन करना नहीं है, आपको इंश्योर करना है कि वो बिल्डिंग एक इक्विटेबल, लिवेबल इकोसिस्टम का हिस्सा बने। इस स्टेज पर यह समझना जरूरी है कि अर्बन डिजाइन का रोल क्या है। सोच के देखो, जब आप एक डिनर पार्टी होस्ट करते हो, प्लानिंग इज द रेसिपी, यह डिसाइड कि क्या पकना है, कितना खाना होगा, किस किस को बुलाना है। आर्किटेक्चर इज द डिश, ब्यूटिफुली कुक्ड फूड, एक एक प्लेट केयरफुली प्रेजेंटेड। Urban design is the dining experience, table setting, lights, music, the way guests feel when they enter your home. Without this, सब खाना भी bland लगता है। Similarly, planning का काम है zoning, infrastructure और land allocation. Architecture एक building का डिजाइन देता है। Urban design वो framework है जो ensure करता है कि ये सब चीजें एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम करें। आप बहरिया टाउन के gated communities देखें, visually stunning roundabouts, but do they encourage public life? फिर लिबर्टी मार्केट देखें, थोड़ा chaotic but alive. अर्बन डिजाइन इज दैट मैजिक ग्लू जो एक शहर को जिंदा रखता है। जब आप डिजाइन करते हैं, याद रखो, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं बना रहे, आप एक्सपीरियंसेस बना रहे हैं। आप डिसाइड कर रहे हो कि एक बच्चा पार्क में कितना सेफ फील करे, एक माँ किस तरह बाजार के बीच स्ट्रोलर के साथ चले, एक जवान किस जगह बैठ के दोस्त के साथ बात करे। यह है रियल पावर ऑफ डिजाइन। ए फ्लैट हम अर्बन डिजाइन के कॉ इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। अगर आप एक शेफ हैं, तो ये वो मसाले हैं जो हर शहर के टेस्ट को डिफाइन करते हैं। फॉर्म, द शेप्स ऑफ द सिटी, यही डिसाइड करता है कि आपको लाहौर के वॉल सिटी की गलियां मजेदार और इंटीमेट क्यों लगती हैं और इस्लामाबाद के सेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड क्यों लगते हैं। फॉर्म इज अबाउट बिल्डिंग हाइट्स, रोड विड्थ्स और अर्बन टेक्सचर। स्पेस, एम्प्टी एरियाज बिटवीन बिल्डिंग्स जो खुद एक चीज बन जाते हैं। Parks, plazas, chalks, these are not wasted land, these are breathing spaces. Imagine Liberty Chalk Lahore. It's a circle, but it's also a cultural anchor. Movement, किस तरह लोग और ट्रैफिक मूव करते हैं। एक शहर का एक्सपीरियंस तभी अच्छा लगता है जब आपकी चलने की रफ्तार, गाड़ी के रुख और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब सीमलेसली फ्लो करें। कराची के सैडा एरिया का केओस आपको ओवरवेल्म करता है बिकॉज मूवमेंट इज पोorly मैनेज्ड। नेचर, हर सक्सेसफुल शहर ने अपने लैंडस्केप को इंटीग्रेट किया है। लाहौर's ओल्ड ट्रीज शेडिंग द मॉल, कराची के कोस्टल ब्रीजेस, इस्लामाबाद के मार्गला के व्यूज, नेचर एंकर सिटीज। एंड पीपल, सबसे इम्पॉर्टेंट। विदाउट पीपल, डिजाइन सिर्फ एक खाली शेल है। अर्बन डिजाइन इज फॉर लोगों के लिए, नॉट गाड़ियों के लिए, नॉट डेवलपर्स के ब्रोशर्स के लिए। सो व्हेनेवर यू ऑब्जर्व अ स्पेस, आस्क योरसेल्फ, फॉर्म कैसा है? स्पेस का क्या रोल है? मूवमेंट स्मूथ है या स्ट्रेसफुल? नेचर विजिबल है या मिसिंग? और सबसे जरूरी, लोगों का कनेक्शन क्या है? अर्बन डिजाइन एक नई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंसानियत के डीएनए में है। फिर साय मोहेंजो-डरो का मास्टर प्लान सोचो, स्ट्रेट रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड प्लानिंग, सब कुछ 4000 साल पहले हो रहा था। तब भी ह्यूमंस अंडरस्टूड कि एक ऑर्गेनाइज्ड लेआउट हेल्थ और कन्वीनियंस के लिए जरूरी है। फिर आते हैं एंशिएंट रोम के पियाज़्ज़ास पे। रोम के डिजाइनर्स ने हर गली और चौक को एक स्टेटमेंट बनाया। उनके लिए डिजाइन सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं था, इट वॉज पावर। पियाज़्ज़ा नवोना एक सोशल और पॉलिटिकल स्टेज थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज डच चौक इस्लामाबाद प्रोटेस्ट के लिए है। पेरिस के 19th सेंचुरी हॉस्मन बुलेवार्ड्स देखो, वाइड एवेन्यूज, साइट लाइन्स, ट्री लाइन स्ट्रीट्स, ये डिजाइन डिसीजंस डिलिबरेट टू कंट्रोल ट्रैफिक एंड इवन पॉलिटिकल अनरेस्ट। लाहौर के शालीमार गार्डन्स और मुगल ईरा फोर्ट्स भी इसी नैरेटिव का हिस्सा है। सिमेट्री, स्केल और ग्रैंडर डिजाइन के जरिए कम्युनिकेट होती थी। द पॉइंट इज, अर्बन डिजाइन इज नॉट अ मॉडर्न इन्वेंशन। ये हमेशा से एक पावरफुल टूल रहा है, फॉर कंट्रोल, फॉर ब्यूटी, फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग। हम आज सिर्फ नए चैलेंजेस के साथ पुरानी विजडम को रिमिक्स कर रहे हैं। शहर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है पब्लिक रेल्म, वो जगह जो हम सब की है, लेकिन किसी एक की नहीं। ये वो स्पेस है जहां हम स्ट्रेंजर्स से इंटरैक्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, खुशी मनाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इट्स द सिटीज लिविंग रूम। कराची के क्लिफ्टन बीच पे जाओ, रिच हो या पुअर, सब वहां एक ही हवा लेते हैं।
लाहौर के लिबर्टी मार्केट में शॉपिंग के अलावा चाय वाले के पास गॉसिप होती है, आर्ट होता है, म्यूजिक होता है। दीज आर पब्लिक स्पेसेस और यही शहर की रूह है। पब्लिक रेल्म को डिजाइन करना मतलब एक शहर की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजाइन करना। जब फुटपाथ्स टूटे हुए होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं करते और बेंचेस नहीं होती, दैट सिटी फील्स नेग्लेक्टेड। जब ट्रीज लगाए जाते हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सेफ होते हैं और स्मॉल प्लाजाज बनाए जाते हैं, लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। एज आर्किटेक्ट्स, आपको याद रखना है, पब्लिक रेल्म इज नॉट लेफ्ट ओवर स्पेस बिटवीन बिल्डिंग्स। इट्स द ग्लू जो एक कम्युनिटी को एक साथ रखता है। डिजाइन ऑफ पब्लिक रेल्म डायरेक्टली डिसाइड्स इफ अ सिटी फील्स लाइक अ होम और अ बैटलफील्ड। Cities are not binary, they're layered. आपका घर, fully private. No one enters without permission. Next layer is semi-public, a shared courtyard, a school campus, or your apartment building का entrance. Then comes public realm, streets, sidewalks, parks, bus stops. ये जगह सबके लिए है। लाहौर के वॉल्ड सिटी के एग्जाम्पल लो, एक दुकान का थ्रेशहोल्ड टेक्निकली प्राइवेट है, लेकिन वो शॉपकीपर अपनी कुर्सी बाहर रखता है और चाय के कप के साथ एक छोटी एरा बन जाती है। Suddenly, the semi-public merges with public. Similarly, gated communities limit access, breaking this natural gradient. अर्बन डिजाइन का काम ये लेयर्स को रिस्पेक्ट करना और स्मूथ ट्रांजिशंस क्रिएट करना है। अगर एक पार्क के अंदर एंटर करते वक्त आपको फील होता है कि आप वेलकम हैं, दैट्स सक्सेसफुल डिजाइन। अगर एक गली इतनी इंटिमिडेटिंग है कि कोई चल के गुजारना नहीं चाहता, दैट्स डिजाइन फेलियर। सोचा समझा डिजाइन हाई डिसाइड करता है कि एक जगह सिक्योर, कोजी या हॉस्टाइल लगती है। विलियम व्हाइट ने कहा, द स्ट्रीट इज द रिवर ऑफ लाइफ ऑफ द सिटी। एक शहर के साइडवॉक्स, चौक्स और प्लाजाज ही उसका हार्ट बीट हैं। अगर वो स्पेसेस जिंदा हैं, तो शहर जिंदा है। लिबर्टी मार्केट लाहौर को देखो, राउंडअबाउट के बीच ट्रैफिक घूम रहा है, फिर भी वो बाजार हमेशा बसलिंग है। वाई? Because the design invites activity, pedestrian-friendly pathways, food stalls, lighting, और open spaces for resting. इसके अपोजिट देखो एक gated society के sterile wide roads, neat, लेकिन soulless. A vibrant public realm boosts economy, foot traffic equals business, mental health, open spaces reduce stress, and social connection, people from all walks of life share space. जब public space को ignore कर देते हैं, isolation, crime, और depression बढ़ता है। आर्किटेक्ट्स के लिए सबसे पहला चैलेंज है पब्लिक रेल्म को प्रायोरिटाइज करना। हमारी डिजाइन स्किल्स का रियल टेस्ट वो नहीं कि हम एक फैंसी बिल्डिंग बना लें, इट्स हाउ वी शेप द स्पेस अराउंड दैट बिल्डिंग। सिटीज डोंट लिव और डाई बाय स्काईस्क्रेपर्स, दे लिव और डाई बाय साइडवॉक्स। विलियम व्हाइट ने कहा, द स्ट्रीट इज द रिवर ऑफ लाइफ ऑफ द सिटी। एक शहर के साइडवॉक्स, चौक्स और प्लाजाज ही उसका हार्ट बीट हैं। अगर वो स्पेसेस जिंदा हैं, तो शहर जिंदा है। लिबर्टी मार्केट लाहौर को देखो, राउंडअबाउट के बीच ट्रैफिक घूम रहा है, फिर भी वो बाजार हमेशा बसलिंग है। वाई? बिकॉज द डिजाइन इनवाइट्स एक्टिविटी, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवेज, फूड स्टॉल्स, लाइटिंग और ओपन स्पेसेस फॉर रेस्टिंग। इसके अपोजिट देखो एक गेटेड सोसाइटी के स्टेराइल वाइड रोड्स, नीट लेकिन सोलस। A vibrant public realm boosts economy, foot traffic equals business, mental health, open spaces reduce stress, and social connection, people from all walks of life share space. जब पब्लिक स्पेस को इग्नोर कर देते हैं, आइसोलेशन, क्राइम और डिप्रेशन बढ़ता है। आर्किटेक्ट्स के लिए सबसे पहला चैलेंज है पब्लिक रेल्म को प्रायोरिटाइज करना। हमारी डिजाइन स्किल्स का रियल टेस्ट वो नहीं कि हम एक फैंसी बिल्डिंग बना लें, इट्स हाउ वी शेप द स्पेस अराउंड दैट बिल्डिंग। Cities don't live or die by skyscrapers, they live or die by sidewalks. बच्चों, सोचो जरा, एक शहर को बिना गलियों के इम्पॉसिबल, राइट? स्ट्रीट्स आर द आर्टरीज ऑफ द सिटी, जहां से ट्रैफिक, लॉग और कल्चर फ्लो करते हैं। मॉल रोड लाहौर का सोचो, कॉलोनियल एरा इमारतें दोनों तरफ, पुराने बरगद के दरख्त जिनके नीचे चाय वाले और न्यूज़पेपर स्टॉल्स हैं, और रिक्शा ड्राइवर्स अपने राइड्स के इंतजार में खड़ाए हैं। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, एक एक्सपीरियंस है। ए फ्लैट चैम्प्स एलीजे पेरिस इमेजिन करो, एक बुलेवार्ड जो डेलिबरेटली डिजाइन हुआ ताकि ग्रैंडर फील हो, लाइन विद लग्जरी शॉप्स और मॉन्यूमेंट्स लाइक द आर्क द ट्रियम्फ। स्ट्रीट्स आर नॉट जस्ट फॉर मूवमेंट, दे आर सिटीज मेन स्टेज। लाहौर के अनारकली बाजार की गलियां और कराची का बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट बोथ फंक्शन एज कल्चरल हब्स। जब डिजाइनर्स सिर्फ गाड़ियों के लिए सोचते हैं, वो फुटपाथ छोटा कर देते हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इग्नोर करते हैं, और सडनली वो सड़क हॉस्टाइल लगने लगती है।
लेकिन जब डिजाइन लोगों के लिए होता है, स्ट्रीट्स बिकम प्लेसेस टू पॉज, मीट और सेलिब्रेट। विलियम वाइट का एक कोट याद रखो, स्ट्रीट्स एंड देयर साइडवॉक्स, द मेन पब्लिक प्लेसेस ऑफ अ सिटी, आर इट्स मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स। स्ट्रीट्स डिफाइन शहर का कैरेक्टर। एक लाइवली स्ट्रीट आपको इनवाइट करती है, एक डेड स्ट्रीट आपको जल्दी से निकलने पे मजबूर करती है। एज अर्बन डिजाइनर्स, योर जॉब इज टू मेक एवरी स्ट्रीट अ सेफ, मेमोरेबल एक्सपीरियंस। जब हम स्क्वायर्स या पियाज़्ज़ास की बात करते हैं, इमेजिन अ मैसिव आउटडोर लिविंग रूम। रोम का पियाज़्ज़ा नवोना, एक परफेक्ट रेक्टेंगल, फाउंटेन्स, स्ट्रीट आर्टिस्ट्स, कैफेज लाइनिंग द एजेस। इट्स नॉट जस्ट एन एम्प्टी पैच, इट्स एन अर्बन स्टेज। लाहौर का लिबर्टी चौक भी एक पियाज़्ज़ा की तरह है। राउंडअबाउट के बीच ट्रैफिक है, लेकिन सराउंडिंग शॉप्स और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली डिजाइन इस चौक को एक सोशल हब बना देते हैं। पीपल नेचुरली ग्रेविटेट देयर, चाहे शॉपिंग के लिए हो या बस हैंगआउट करने के लिए। एक्स स्क्वायर का मैजिक प्रोपोर्शंस में होता है, अगर वो बहुत बड़ा है, इट फील्स कोल्ड, बहुत छोटा है, टू सफोकेटिंग लगता है। डिजाइनर्स सेंचुरी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसे एक प्लाजा इंटीमेट और ग्रैंड दोनों हो सकता है। मुगल आर्किटेक्चर के कोर्टयार्ड्स इसका एक मास्टर क्लास है। फॉर फ्यूचर रेफरेंस रिमेंबर, एवरी स्क्वायर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल इंटरैक्शन। जहां गाड़ियां डोमिनेट करते हैं, लोग जल्दी निकल जाते हैं, जहां लोगों के लिए जगह है, शहर का दिल धड़कता है। सिटीज बीना नेचर के स्टेराइल लगते हैं। इस्लामाबाद का फातिमा जिन्नाह पार्क एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 700 एकर्स का ग्रीन ओएसिस जहां लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, फैमिलीज पिकनिक करते हैं और शहर के बीच एक सेंस ऑफ काम मिलता है। सिमिलरली, न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क एक डेलिबरेट डिजाइन था टू गिव वर्किंग क्लास रेजिडेंट्स रिलीफ फ्रॉम इंडस्ट्रियल सिटी लाइफ। ग्रीन स्पेसेस सिर्फ डेकोरेशन नहीं होते, ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी हैं। स्टडीज कहती हैं कि लोग जो पार्क्स के पास रहते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल और डिप्रेशन रेट्स कम होता है। लाहौर के रेसकोर्स पार्क और बाग ई जिन्नाह सेंचुरीज पुरानी ग्रीन लंग्स हैं जो अब भी शहर के रिदम को बैलेंस करते हैं। जब हम प्लानर्स और डेवलपर्स पार्क्स को एक्स्ट्रा स्पेस समझ के सेल कर देते हैं, हम शहर की जान खत्म कर देते हैं। एक अच्छे अर्बन डिजाइनर का काम है हर प्रोजेक्ट में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेट करना, छोटे पार्क्स, ट्री लाइन स्ट्रीट्स और शेडेड पाथवेज। बिकॉज अ सिटीज हेल्थ इजंट मेजर्ड बाय स्काईस्क्रेपर्स, इट्स मेजर्ड बाय ट्रीज। ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑलवेज वाटर के पास शुरू हुए। रिवर इंडस के किनारे मोहेंजो-डरो बना, वेनिस कनाल्स के अराउंड एक एम्पायर बिल्ड हुई। टुडे, वाटरफ्रंट्स डिफाइन सिटी ब्रांडिंग। कराची का क्लिफ्टन बीच इनफॉर्मल है, फैमिलीज पिकनिक करते हैं, वेंडर्स आइसक्रीम बेचते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। दुबई मरीना का वाटरफ्रंट लग्जरी और कंट्रोल का सिंबल है। वाटर एजेस डिजाइन करने का मतलब है ह्यूमन कनेक्शन विद नेचर रिस्टोर करना। इमेजिन अ प्रोमेनेड विद बेंचेस, जॉगिंग ट्रैक्स और कैफेज फेसिंग द सी। सडनली एक नेग्लेक्टेड एज एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाता है। कराची के कोस्टल एरियाज अभी भी लार्जली अंडरडेवलप्ड हैं, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वाटरफ्रंट्स ऑफर डिजाइन अपॉर्चुनिटीज फॉर रिक्रिएशन, कॉमर्स एंड इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। जब आप शहर का मास्टर प्लान बनाएंगे, वाटर एजेस को इग्नोर न करना, दे आर इमोशनल एंड इकोनॉमिक एसेट्स। केविन लिंच कहता है कि शहर को समझने के लिए 5 चीजें समझनी होंगी। पाथ्स, वो रोड्स और साइडवॉक्स जिन पर लोग मूव करते हैं। एजेस, बाउंड्रीज, नदी, रेल ट्रैक या एक बिजी एक्सप्रेसवे जो एक एरिया को दूसरे से अलग करता है। डिस्ट्रिक्ट्स, एरियाज विद अ यूनिक आइडेंटिटी, लाहौर का डिफेंस, कराची का साडा। नोड्स, मेजर पॉइंट्स ऑफ एक्टिविटी, लिबर्टी चौक, लाहौर फोर्ट का गेट। लैंडमार्क्स, विजुअल एंकर्स, मीनार-ए-पाकिस्तान, फैजल मॉस्क। हर शहर की एक मेंटल इमेज होती है। एक सेफ और ऑर्गेनाइज सिटी वो होती है जो इजीली नेविगेट होती है। अगर आपको एक शहर का स्ट्रक्चर समझने के लिए कॉन्स्टेंटली गूगल मैप्स खोलनी पड़ती है, दैट्स अ डिजाइन फेलियर। लाहौर का चार्म पार्टली इसलिए है कि उसकी हिस्ट्री और लैंडमार्क्स इजीली रिकॉग्नाइजेबल हैं। एक वेल डिजाइन सिटी आपको नेचुरली गाइड करती है। आपको कभी मॉल के अंदर भी कंफ्यूज होने का फील हुआ? वो भी एक डिजाइन प्रॉब्लम है। अर्बन डिजाइन्स गोल इज टू मेक सिटीज लेजिबल, इंट्यूटिव और वेलकमिंग। शहर के सबसे पावरफुल डिजाइन प्रिंसिपल्स में से एक है ह्यूमन स्केल। जब एक जगह आपको कंफर्टेबल लगती है, जब आप बिना डरे वहां चल सकते हैं, बैठ सकते हैं या अपने बच्चों को खेलने दे सकते हैं, वो शहर ह्यूमन स्केल पे डिजाइन हुई है। लाहौर के वॉल्ड सिटी का सोचो, गलियां टांग हैं, इमारतें पास पास हैं, लेकिन एक चर्म है। छोटे शॉप्स के सामने कुर्सियां राखी होती हैं, दरख्तों के नीचे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं
और लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं। ये इंटिमेसी शहर को जिंदा बनाती है। ए फ्लैट उसके ऑपोजिट इमेजिन करो, एक एक्सप्रेसवे या फ्लाईओवर का एज। पेडेस्ट्रियंस के लिए जगह नहीं, गाड़ियों का शोर, और आपको लगता है कि आप यहाँ बिलोंग नहीं करते। ये इसलिए होता है कि डिज़ाइन ने गाड़ियों को प्रायोरिटी दी है, इंसान को नहीं। कोपेनहेगन एक दुनिया का मॉडल है ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन का। वाइड साइडवॉक्स, बाइक लेन्स, स्लो ट्रैफिक जोन्स। ये शहर लोगों को एनकरेज करता है चलने, इंटरैक्ट करने और सिर्फ फील करने के लिए। एज अर्बन डिज़ाइनर्स, याद रखो कि प्रोपोर्शन और स्केल का डायरेक्ट असर होता है एक शहर के सोशल बिहेवियर पे। स्ट्रीट्स को वाइड करना सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं होना चाहिए, उन्हें ह्यूमन एक्सपीरियंस के हिसाब से प्लान करो। डिजाइनिंग फॉर ह्यूमंस फर्स्ट मेक सिटीज हेल्थियर, सेफर एंड हैप्पियर। विलियम एच वाइट ने अपनी फेमस स्टडी द सोशल लाइफ ऑफ स्मॉल अर्बन स्पेसेस में एक सिंपल चीज प्रूव की, लोग दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क के प्लाजाज में कैमराज लगाए और ऑब्जर्व किया कि लोग नेचुरली कहाँ रुकते हैं। रिजल्ट सरप्राइजिंग था। पीपल वर नॉट अट्रैक्टेड बाय फैंसी स्कल्पचर्स या शाइनी मटेरियल्स, दे वर अट्रैक्टेड टू अदर पीपल। जब जगह कंफर्टेबल होती है, बेंच अवेलेबल है, थोड़ा शेड है, फूड वेंडर्स हैं, लोग रुकते हैं। और जब एक बंदा रुकता है, दूसरे नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। यह डोमिनो इफेक्ट है। लाहौर के लिबर्टी मार्केट के स्टॉल्स देखो, गाड़ियों का शोर है, भीड़ है, लेकिन फिर भी लोग एंजॉय करते हैं कि उनके डिजाइन ने एक रिदम बनाया है। वाइड फुटपाथ्स, थोड़ा सा ओपन स्पेस और इनफॉर्मल वेंडर्स जो स्ट्रीट लाइफ क्रिएट करते हैं। वाइट कहता है कि सक्सेसफुल पब्लिक स्पेस के लिए सीटिंग जरूरी है। फूड वेंडर्स लोग अट्रैक्ट करते हैं। वाटर और नेचर एक मैग्नेट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डिजाइन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपका काम सिर्फ खूबसूरत जगह बनाना नहीं, बल्कि जगह को यूजफुल और लाइवली बनाना है। क्योंकि एक प्लाजा तभी जिंदा है जब लोग उसे अपनाते हैं। हर शहर का एक फॉर्मल मास्टर प्लान होता है, लेकिन असली जिंदगी इनफॉर्मल स्पेसेस में होती है। कराची के साडा का सोचो, दिन के वक्त ये एक बिजी कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है। शाम होते ही वेंडर्स अपने ठेले लेकर आते हैं और पूरी सड़क एक स्ट्रीट मार्केट बन जाती है। ये शहर का स्पॉन्टेनियस रिदम है। लैटिन अमेरिका के सिटीज में भी ये कल्चर है। स्ट्रीट परफॉर्मर्स, पॉपअप स्टॉल्स, लोकल म्यूजिशियंस। ये सब ऑफिशियली प्लान नहीं होता, लेकिन सिटी को पर्सनैलिटी देता है। बहुत बार फॉर्मल प्लानिंग इनफॉर्मल एक्टिविटीज को, एनक्रोचमेंट्स समझ के हटा देती है, लेकिन समझना चाहिए कि ये हाई शहर के सोशल लाइफ के एंकर्स हैं। लाहौर के शाही गुजरगाह स्ट्रीट का एग्जाम्पल देखो, रेस्टोरेशन के बाद भी इनफॉर्मल चाय वाले और दुकानदार अपनी जगह बनाए रखे। अर्बन डिजाइन तभी सक्सेसफुल होती है जब वो फॉर्मेलिटी और स्पॉन्टेनिटी का बैलेंस रखती है। एज डिजाइनर्स, आपको एक क्लीन स्पेस के पीछे इनफॉर्मल एनर्जी को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। द बेस्ट सिटीज एब्रेस द स्ट्रीट कल्चर। सिटीज सिर्फ कल्चर और कमर्स के लिए नहीं बनते, वो पावर के सिंबल्स भी होते हैं। इस्लामाबाद के डच चौक का सोचो, हर 12 प्रोटेस्ट, हर 12 पॉलिटिकल मूवमेंट वहां होता है। क्योंकि वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच है, अ डेलिबरेट डिजाइन चॉइस। सिमिलरली, बीजिंग का तियाननमेन स्क्वायर एक पॉलिटिकल थिएटर है। लाहौर के कॉलोनियल ईरा मॉल रोड भी इसी लॉजिक का रिजल्ट था। ब्रिटिश ने वाइड बुलेवार्ड्स डिजाइन किए ताकि उनकी ताकत और ऑर्डर रिफ्लेक्ट हो। डिजाइन डिसीजंस कभी न्यूट्रल नहीं होते। आप किस जगह फुटपाथ बनाते हैं, किस जगह पब्लिक सीटिंग देते हैं, किस जगह बैरियर्स लगाते हैं, ये सब एक स्टेटमेंट है। कभी कभी पब्लिक रेल्म इंटेंशनली अनकंफर्टेबल बनाई जाती है ताकि लोग वहां रुक ना सकें। ये भी पावर का टूल है। एक अच्छा अर्बन डिजाइनर इन डायनामिक्स को समझता है। सिटीज के सिंबल सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, उनकी लेआउट और एक्सेसिबिलिटी भी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होती है। अर्बन डिजाइन एक सिंगल डिसिप्लिन नहीं, इट्स अ फ्यूजन ऑफ मेनी फील्ड्स। अगर आप एक सक्सेसफुल अर्बन डिजाइनर बनना चाहते हैं, यू नीड टू लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस, ट्रांसपोर्ट डिजाइन, रोड्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पेडेस्ट्रियन एंड साइकिलिंग नेटवर्क्स। कराची के BRT कॉरिडोर्स एक ट्रांसपोर्ट लेड अर्बन डिजाइन एग्जाम्पल हैं। लैंडस्केप अर्बनिज्म, पार्क्स, ग्रीनवेज, इकोलॉजिकल प्लानिंग। इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स एक लैंडस्केप ड्रिवन सिटी डिजाइन का मॉडल है। हेरिटेज कंजर्वेशन, ओल्ड नेबरहुड्स का कैरेक्टर प्रिजर्व करना, जैसे लाहौर वॉल्ड सिटी का रीजेनरेशन। अर्बन टेक और स्मार्ट सिटीज, डेटा, सेंसर्स और डिजिटल प्लानिंग टूल्स जो शहर को रियल टाइम मॉनिटर करते हैं। अर्बन डिजाइन एक ऑर्केस्ट्रा है, हर स्ट्रैंड एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर कोई एक मिसिंग है, म्यूजिक इनकम्प्लीट लगता है। आपको एज अ डिजाइनर एक कंडक्टर बनना है जो सबको एक रिदम पे लाए।
दिस इज वाई दिस कोर्स इज क्रिटिकल। आपको एक नैरो आर्किटेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक सिटी शेपर की तरह सोचना सीखना है। हर शहर अपने कल्चर का आईना होता है। लाहौर के वजीर खान मॉस्क का सोचो, इंट्रिकेट टिलवर्क, हैंड पेंटेड फ्रेस्कोज, एक सेंट्रल कोर्टयार्ड जहां लोग सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी के लिए भी जमा होते हैं। ये एक स्पिरिचुअल और कल्चरल सेंटर है जो मुगल एरा के डिजाइन फिलॉसफी का प्रूफ है। ए फ्लैट इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार इमेजिन करो, नैरो कॉरिडोर्स लाइंड विद शॉप्स, डोम सीलिंग्स और एक हसल जो सेंचुरी से वहां है। इट्स नॉट जस्ट अ मार्केट, इट्स अ कल्चरल लैंडमार्क। जब टूरिस्ट्स वहां आते हैं, दे आर नॉट जस्ट शॉपिंग, दे आर एक्सपीरियंसिंग हिस्ट्री। कराची के बर्न्स रोड की फूड कल्चर भी इसी प्रिंसिपल पे चलता है, एक गली जो खाने के जरिए शहर की आइडेंटिटी बन गई। आप देख सकते हैं कि कैसे डिजाइन और लेआउट कल्चर को एम्पलीफाई करते हैं। अर्बन डिजाइन का काम कल्चर को हाईलाइट करना है, अरेज करना नहीं। जब हम एक जगह मॉडर्नाइज करते हैं और उसकी पुरानी आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं तो शहर की रूह खत्म हो जाती है। अ गुड डिजाइनर सेलिब्रेट्स कल्चर थ्रू स्ट्रीटस्केप्स, साइनेज, मटेरियल्स एंड प्रिजर्वेशन। Some spaces carry collective memory. Berlin's Holocaust Memorial forces silence, its design invites reflection and sorrow. Lahore Fort, once a seat of Mughal power, tells stories of conquest and resilience. Every city has sites of memory, some joyous, some tragic. Urban designers must understand how design influences emotion, paving, scale, and sightlines can evoke pride or grief. Cities are emotional landscapes, memory makes them sacred. Urban design is inseparable from climate. In Gwadar, traditional wind catches cool homes naturally. Islamabad's green belts were designed to regulate temperature and air quality. Mazda City in Abu Dhabi shows how futuristic tech and traditional desert design merge. In Pakistan's hot, dry cities, shaded walkways and courtyards aren't just aesthetic, they're survival. Climate-conscious design is the future of resilient cities. Who is your city built for? In many Pakistani cities, footpaths are broken, crosswalks non-existent, and women don't feel safe in parks after dark. Inclusive design asks, can a wheelchair user navigate your streets? Can a mother with a stroller feel safe? Can public spaces welcome all genders and ages? Aurat March rallies show how women reclaim space. Inclusive design makes that easier. A just city is one where no one feels excluded. Sustainable design is no longer optional. Singapore integrates vertical forests into skyscrapers. Copenhagen aims to be carbon neutral by 2025. Islamabad's original master plan embedded green belts and tree cover. In Karachi, mangrove restoration is a design and environmental strategy. Urban design must manage water, waste, and energy as much as it shapes streets. Designing sustainably means designing for generations to come. Barcelona faced traffic, pollution, and noise. The solution? Superblocks, clusters of streets closed to through traffic, turning intersections into plazas. Suddenly, children played where cars once sped. Businesses thrived. Residents breathed cleaner air. This bold design redefined how streets could serve communities rather than cars. Lessons for Pakistan. Even small interventions, pedestrianizing streets, adding shade, prioritizing people, can transform quality of life. The Walled City Authority's restoration of Shahi Guzargah Street shows how design can revive history and economy. Narrow lanes were repaved, facades restored, and lighting improved. The result? Tourism flourished, shops revived, and Lahore's heritage became a source of pride. This is urban design as cultural and economic investment. Preserving history while improving functionality is a key skill for every architect. Copenhagen teaches bike culture. Tokyo teaches efficiency. Istanbul teaches integration of history and modernity. Lahore teaches resilience and cultural richness. No city is perfect, but each offers lessons in human-centered design. As students, travel, even virtually, should be part of your toolkit. Study cities like books. Every square and street tells a chapter of human creativity. If you remember nothing else from this lecture, bas itna sa yaad rakh lo, cities are living stories. The public realm is where life happens. Design decisions carry cultural and political weight. Climate and inclusion are essential to survival. And finally, urban design is not just drawing plans, it's shaping life. Your work as future architects has the power to transform society. For your first assignment, I want you to choose a space you love or hate in your city. It could be a park, a square, a street corner, or a chaotic bazaar. Photograph it, map it, and write 2 paragraphs on why it feels alive or dead.
We'll discuss your findings in the next class. Urban design starts not with drafting but with observation. The city is your first textbook. शहर सिर्फ कंक्रीट और स्टील का मजमुआ नहीं, दे आर लिविंग, ब्रीदिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी सोच, हमारी कल्चर और हमारी हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं। हर चौराहा, हर सड़क, हर पुरानी इमारत एक कहानी सुना रही होती है, पावर की, कॉन्क्वेस्ट की, यादों की, सपनों की। आपका काम सिर्फ बिल्डिंग्स डिजाइन करना नहीं है, आपको लाइफ डिजाइन करनी है। एक अच्छी तरह से बनाया गया फुटपाथ एक बच्चे को स्कूल तक सेफ महसूस कराता है, एक नेग्लेक्टेड हुआ पार्क पूरे मोहल्ले को फॉरगॉटन फील करा सकता है। अर्बन डिजाइन के जरिए आप बिलोंगिंग का एहसास क्रिएट करते हैं। आज से अपने शहर को नए नजरिए से देखें। जो क्रैक्ड पेवमेंट फुटपाथ आप रोज देखते हैं, शाम को जिस चाय वाला एक कॉर्नर पे बीटा है, जो पुराना बरगद का दरख्त है, ये सब डिजाइन के एलिमेंट्स हैं। अर्बन डिजाइन कर लिया शहर आपका पहला क्लासरूम है। जब आप शहर नॉट सो हिडन पैटर्न्स को समझना शुरू कर देते हैं, तभी आप डिजाइन को एम्पैथी और पावर के साथ क्रिएट कर सकते हैं। Today, we explored what urban design is and why it matters, the heartbeat of a city, the spaces where life unfolds. Next class, we move into Unit 2, Program vs Paradigm, Space with and Without Spirit. We'll explore how designers use depth, perspective, and form to create emotional responses in urban spaces. We'll break down concepts like meeting the sky, meeting the ground, concavity and convexity, and other techniques that make a simple street feel grand or intimate. You'll start learning to read space like a designer, not just see it. This is where your eye gets trained to pick up the invisible geometry behind urban life.